Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harper Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. And together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today we start with the chapter number 7. And the chapter number 7 is ratio and proportions. So first of all, we will revise the concept of ratio, because in the lower classes you have already studied this concept of ratio. So now we will again first of all revise the concept of ratio. What we mean by the term ratio. So the ratio means the quotient of two quantities. Suppose we have two quantities A and B. Then A over B, this is quotient of A and B, and this is the ratio between A and B, and this can be written in symbolic form as A ratio B, and this is read as A ratio B. And ratio is always expressed in its lowest term. Lowest term means, like, suppose we have A as 40 and B as 32. Then A upon B, the quotient of A and B, that is 40 upon 32. Now if you recall the table of 8 5s are 40 and 8 4s are 32. So this can be cancelled on 8. This is 5, this is 4. So ultimate value is 5 over 4. So it means this is 5 ratio 4. So remember this thing, that the ratio is always expressed in the lowest term. So we can cancel the HCF, whatever is the highest common factor of the two numbers A and B, that we will cancel and then express this in the lowest term. And second important thing that you need to remember is that ratio, whenever it is to be taken, whenever the quotient of two numbers is to be calculated, then the unit of the two must be same. A and B, they must have the same unit, and the ultimate ratio which comes out to be A over B, it has no unit. A over B has no units. But in order to find the ratio of two quantities, they must be of same unit. We cannot take the ratio of meter with centimeter. Similarly, we cannot take the ratio of kilogram with gram. So first of all, the unit must be same. Only then we will calculate the quotient. And A ratio B is not equal to B ratio A, as A upon B is not equal to B upon A, and A upon B is equal to B upon A only when A is equal to B. जब A और B बराबर होंगे तभी A over B और B over A की वैल्यू इक्वल होगी, otherwise these are not equal. So in this way we can use the concept of ratio. So now we further study with more concepts of ratio. Now we further take composition of the ratios. Composition of the ratios. And here the first one is compound ratio. Compound ratio. Compound ratio is the ultimate result of two ratios obtained by multiplying the corresponding terms of the ratio. Suppose we have A ratio B and then C ratio D and then
E ratio F and so on. There may be 2 ratios, there may be 3 ratios, or there may be more than 3 ratios. Then compound ratio of these 3 ratios, suppose if we have these 3, then the first term A, C and E, multiply these 3, and B, D and F, B into D into F. Then the ratio between these 2 terms is called the compound ratio of the ratios A ratio B, C ratio D, E ratio F. तो कंपाउंड रेशियो में हम क्या करते हैं, कंपाउंड रेशियो में जितनी भी रेशियोज हमें दे रखी हैं उन सभी की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रेशियो हमारे पास आती है, दैट रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो ऑफ द गिवन रेशियोज. देन वी हैव डुप्लीकेट रेशियो. सेकेंड वन इज डुप्लीकेट रेशियो. अब जो हमारे पास सपोज गिवन रेशियो है ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी की जो डुप्लीकेट रेशियो होती है दैट इज कंपाउंड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी विद ए रेशियो बी. मीन्स इसी को हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए इंटू ए रेशियो बी इंटू बी, दैट इज ए स्क्वेयर रेशियो बी स्क्वेयर. सो डुप्लीकेट रेशियो में हम उस रेशियो की दोनों टर्म्स को स्क्वेयर कर देते हैं, ए स्क्वेयर रेशियो बी स्क्वेयर. इसी तरह से हम ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आई गेस कि आप समझ गए होंगे कि ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम क्या करने वाले हैं. तो ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर हमारे पास ए रेशियो बी है तो इसकी जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगी उसको हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. कंपाउंड ऑफ ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी 3 बार. तो जब हम 3 बार कंपाउंड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब. तो ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम जो गिवन रेशियो है उसकी दोनों टर्म्स का क्यूब कर देंगे. देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास आएगा सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एनी रेशियो ए रेशियो बी. जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगी उसमें हम, जैसे डुप्लीकेट रेशियो में हमने उसको स्क्वेयरिंग करा था, तो अब अगर मान लो कि हमने सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करनी है तो आपको डुप्लीकेट रेशियो दे रखी है, आपको ओरिजिनल रेशियो पता करनी है. तो जैसे ये डुप्लीकेट रेशियो थी कहाँ से आई थी, ए रेशियो बी से, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल के. तो अगर हमारे पास ए रेशियो बी गिवन है तो उसकी जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगी दैट इज रूट ए रेशियो रूट बी. इसी तरह से फिर हम 5th नंबर पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ गिवन रेशियो ए रेशियो बी. जो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है वो होती है, अब जैसे उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या थी. ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या थी कि किसी भी रेशियो को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करके कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करनी, दैट मीन्स ए क्यूब रेशियो बी क्यूब. अब सब ट्रिप्लीकेट में हमें ये चीज ऑलरेडी गिवन होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसका मतलब कि ये हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जिनका क्यूब ए हो. तो इट मीन्स कि क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो. तो इस तरह से हम क्यूब रूट निकाल देंगे. देन कम्स रेसिप्रोकल रेशियो. एट द एंड हमारे पास होती है रेसिप्रोकल रेशियो. रेसिप्रोकल टर्म से आप सभी फेमिलियर हैं. रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना. तो रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी हमारे पास हो जाएगी 1/a रेशियो 1/b. तो जैसे हम रेशियोज में इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी, जैसे हम सिंपल सिंप्लीफिकेशंस के लिए यूज करते हैं. एंड देयर इट विल बी बी, हियर इट विल बी ए. तो इट मीन्स कि जब हम रेसिप्रोकल रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो रेशियो में ये चीज कैंसिल होगी तो बी रेशियो ए हमारे पास बचा. तो अल्टीमेटली जो रेसिप्रोकल रेशियो है किसी भी रेशियो की, उसमें टर्म्स इंटरचेंज हो जाती हैं. तो अगेन वी विल रिवाइज. कंपाउंड रेशियो मीन्स कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो रेशियो आएगी, इफ ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ गिवन है तो उनकी कंपाउंड रेशियो हो जाएगी ए इंटू सी इंटू ई रेशियो बी इंटू डी इंटू एफ.
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी हमारे पास आएगी ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी हमारे पास आएगी ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी हमारे पास आएगी क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। एंड रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी हमारे पास आएगी बी रेशियो ए। सो दीज आर द सम कंपोजिशन ऑफ ratios, and I hope these concepts are very much clear to you. In the next AV we will apply these results on various sums. Thank you very much for watching this AV.